Let's move to the next one. I expect that all of you have gone through all these questions. सर्वस्त्र questions हमने बहुत सारा variety of questions solve कर चुके हैं already. यहाँ पे हमने solve किए थे सारे के सारे. Now let's go and see the rest of the things related to power. Okay. So here I'm giving you one example. If I'm taking one lens like this, एक सेकेंड, मैं अगर ऐसा एक लेंस लेता हूं, सॉरी, ऐसा एक लेंस लेता हूं, then if a ray of light, if a parallel beam of light is coming, then they are getting converged. Definitely they are getting converged. Sorry. So this type of lens are called as converging lens. So similarly, if I'm talking about, if I'm taking a lens like this, that is implied then if a parallel beam of light is coming, then it is getting diverged, right? Okay, so this one is the converging lens, this one is the diverging lens. अभी देखो मैं एक दूसरा लेंस ड्रॉ कर रहा हूं. एंड मैं क्या कर रहा हूं, सेम पैरेलल बीम ऑफ लाइट को मैं लेके आ रहा हूं यहाँ पे. This is the same parallel beam of light. Can you think what will happen to the refracted ray? What will happen to the emerging ray? It will converge at a nearer point. So what can we conclude from here? यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है? कोई मुझे बता सकते हो? यहाँ पे मैंने सेम रे को दिया, ये यहाँ पे कन्वर्ज हुआ. यहाँ पे मैंने सेम रे को दिया, ये यहाँ पे कन्वर्ज हुआ. What does that means? ये बहुत जल्दी ही ये रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर रहा है ना. In this case, if I am taking that the converging angle, and in this case you see the converging angle, in the second case it is converging more. So हम क्या बोल सकते हैं, ये ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है. और else इसका converging ability को हम एक नाम दे सकते हैं, that is called as converging power. So similarly, this one, this lens is the concave lens. It is also having a diverging power, and in a broad sense, the lenses are also having something called as power. So उसी के बारे में हम लोग पढ़ने को जा रहे हैं. So write down the headline power. पावर का मतलब क्या होता है बताओ? पावर पावर पावर. जब भी मैं क्लास 10th में जाता हूँ, पावर का मतलब बताओ बोलने से वो लोग बोलते हैं सर रेट ऑफ डूइंग वर्क. नहीं सॉरी, वर्क डन बाय टाइम बोलते हैं. बताओ यहाँ पे पावर क्या होगा? वर्क डन बाय टाइम होगा? नो. इन दिस केस द पावर इज बेसिकली द converging ability or the diverging ability of the lens is called as power of that lens. So therefore उसके नीचे लिख लो the converging ability, या फिर ऐसा लिखो the ability of a lens to converge or diverge the ability of a lens to converge or diverge a parallel beam of light is called its power. Is called its power. तो फिर देखो इन दोनों में से किसका कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है, ये पहले वाले का या ये दूसरे वाले का? अरे this is the first case, this is the second case. Am I audible to all of you? The second case. सेकेंड केस में ज्यादा कन्वर्जिंग पावर है, इसलिए ये जल्दी से इसको कन्वर्ज कर दे रहा है. So therefore we see the second lens is having more converging power. या फिर देखो ये दोनों लेंस में फोकल लेंथ में क्या रिलेशन है? पहला वाले का फोकल लेंथ लंबा है, अगर एक पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगा वो दूर में जाके कन्वर्ज होगा. यहाँ पे एक पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगा वो जल्दी कन्वर्ज हो जाएगा. So therefore here whatever focal length is there, in this case the focal length is larger, in this case the focal length is smaller. Therefore here we can conclude, here we can understand that focal length decreases or power decreases on increasing focal length. इस केस में फोकल लेंथ ज्यादा बड़ा है इसलिए पावर डिक्रीज हो गया, इस केस में फोकल लेंथ कम है इसलिए पावर इंक्रीज हो गया. So therefore here you can write down another point.
तो फिर देखो पावर अगर बताया जा रहा है तो फिर हमें बताना पड़ेगा ना कि इसका पावर कितना है, इसका पावर कितना है, तो उसका एक डेफिनेशन रहना होगा। सो दैट इज व्हाई एक मैथमेटिकल डेफिनेशन भी है पावर का। सो राइट इट डाउन। मैथमेटिकली पावर इज डिफाइंड एज reciprocal of focal length. Mathematically, power is defined as the reciprocal of focal length in meter. So therefore, power of any lens, we can write it down that power of any lens P is equals to 1 divided by focal length. But this focal length has to be in meter. लेकिन फोकल लेंथ हमेशा मीटर में दिया हुआ रहेगा, इसका तो कोई गारंटी नहीं है। मान लो कि वो सेंटीमीटर में दिया गया है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, मान लो फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया गया है, तो फिर उसको चुपचाप मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। सो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम इसको चुपचाप डिवाइडेड बाय 100 कर दो। सो दिस विल गिव यू इन मीटर। सो ये 100 को ऊपर लेके चले जाओ, क्या आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ इन centimeter. So this will be equals to 100 divided by focal length in centimeter. So therefore this is the power formula. Power is equals to 1 by focal length in meter, that is will be equals to 100 divided by focal length in centimeter. अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो फिर now this is a physical quantity, so इसका कुछ एक यूनिट भी रहेगा. What is the unit? Unit the SI unit of power is diopter. Diopter denoted as capital D. So one diopter का मतलब क्या होगा? One diopter means the power of that lens whose focal length is equals to 1 meter. That will be called as one diopter. Done? Okay, यहाँ पे एक स्टार मार्क देके कुछ हम लिख सकते हैं. देखो हम लोगों को फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या बताया गया है, पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस क्या बताया गया है. Focal length of convex lens is taken as positive, focal length of concave lens is taken as negative, isn't it? So that is implied then अगर फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव होगा तो फिर पावर क्या हो जाएगा, 1 by पॉजिटिव विल बी पॉजिटिव. फोकल लेंथ अगर नेगेटिव हो जाएगा 1 by नेगेटिव विल बी इक्वल टू नेगेटिव. सो देयरफॉर पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस दिस इज इक्वल टू पॉजिटिव एंड पावर ऑफ concave lens this is equals to negative. This is equals to negative. So convex lens का पावर पॉजिटिव होता है, concave lens का पावर नेगेटिव होता है. Is it clear to all of you? Am I connected to all of you? Yes, sir. अच्छा एक सेकेंड. Okay, let's move ahead. So चलो प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. हाँ, so here is the question. A double convex lens of 5 diopter is made up of glass of refractive index 1.5. Okay. फोकल लेंथ का मैंने एक फॉर्मूला दिया था, किसी को याद है? फोकल लेंथ रिफ्रैक्शन के रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन को देखो, ये तुम्हारे इसका ही क्वेश्चन, एसएलआर का ही क्वेश्चन है. वी हैव स्टडीड दैट 1 by f that is equals to mu21 minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. 1 by r1 minus 1 by r2. एक बार जाके वीडियोस को देख लेना जो भी मैंने तुम लोगों को भेजा है. That and for double here you see एक डबल कन्वेक्स लेंस है. डबल कन्वेक्स लेंस मतलब ऐसे करके और दोनों साइड का रेडियस r और r है.
तो फिर R1 के केस में R लग जाएगा, R2 के केस में माइनस R लग जाएगा, बिकॉज इट इज टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। हियर यू सी इसका सेंटर इस साइड में रहेगा इसलिए R हो जाएगा, इसका सेंटर इस साइड में रहेगा इसलिए माइनस R हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस R पुट करके देखो, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, you are going to get it to be mu21 minus 1 into this will be equals to 2 divided by R, 2 divided by R। and secondly देखो mu21 का वैल्यू mu हो जाएगा, बिकॉज ये सारा का सारा कैलकुलेशन सब कुछ with reference to air है, so mu1 is equals to 1 हो जाएगा, because this mu21 is equals to mu2 divided by mu1 and mu1 is equals to 1, तो फिर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, mu2 हो जाएगा बस रेशियो। So therefore this can also be written as mu minus 1 into 2 divided by R. 1 by F is equals to mu minus 1 into 2 divided by R. And what is 1 by R, by the way? 1 by R क्या होता है? Power. Sorry, 1 by F. 1 by F क्या होता है? The power. So this is what is P. Isn't it? So that is implied then. हम यहाँ पे लिख सकते हैं that 5 is equals to mu का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 minus 1 into 2 divided by R. Can you all calculate the value of R? R का वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ यहाँ पे। कितना आ रहा है R का वैल्यू? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर it will be. It will be coming as 1 by 5. 1 by 5 हो गया, because here you see this one is 1.5 minus 1, that is 0.5. 0.5 is 1 by 2. यहाँ पे 2 are getting cancelled. R दूसरी साइड में जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा. So R is equals to, you'll be getting it to be 1 by 5. This will be meter. So that will be equals to 20 centimeter. Similarly दूसरा वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो क्या? सेम फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। क्या क्या चीजें दिया हुआ है देखो, ग्लास जो भी मटेरियल है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। सेकेंडली when it is kept in a medium, उसको हमने एक और मीडियम में रखा, so this is mu2, this is mu1 and उसका पावर दिया हुआ है -5 डायोप्टर। उसका मतलब let us use the formula 1 by f, that will be equals to mu21 minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2। Secondly देखो, this one is equiconvex concave lens। इक्वी-कॉन्केव लेंस, इक्वी-कॉन्केव लेंस मतलब क्या है, ऐसा होगा। अगर ऐसा होगा R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, R1 इस साइड में आएगा, so therefore R1 will be minus R, नेगेटिव। R2 इस साइड में आएगा, so R2 will be equals to plus R। so चलो पुट कर लो, R1 is equals to minus R, R2 is equals to plus R। चलो वैल्यूज को पुट करो। 1 by F is basically the power, पावर दे दिया है, उसका वैल्यू पुट कर लो -5। So -5, this will be equals to mu21, that is mu2 by mu1. Mu2 is 1.5 divided by mu1 is 1.4 minus 1 into this one will be -2 divided by R. 1 by minus R minus 1 by R, that will be -2 by R। तो फिर यहाँ पे माइनस माइनस को मैंने कैंसिल कर दिया, कैलकुलेट करो, that is implied then R will be equals to 1.5 divided by 1.4 minus 1 into 2 divided by 5। कैलकुलेट कर लो, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका वैल्यू आ जाएगा, ये पॉइंट दोनों को हटा दो, 15 by 14 आ जाएगा। सो 15 minus 1 divided by 15 minus 14 divided by 14, so this will be 1 by 15, 1 by 14 into 2 divided by 5। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 7 से, so that will be equals to 1 by 35 मीटर।
that will also be equals to 100 divided by 35 centimeter. This will be the radius of curvature. चलो नेक्स्ट वाली क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, इसको छोड़ दो, इसमें चलते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. If f is equals to plus 5 meter plus 0.5 meter, what is the power of the lens? कितना हो जाएगा पावर? ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है. So 1 by 0.5. 1 by 0.5. So P is equals to 1 divided by 0.5. That will be coming as 2. Unit क्या हो जाएगा? The diopter. Diopter. Very good. The radii of curvature of the faces of a double convex lens are. Okay. So यहाँ पे देखो double convex lens दिया हुआ है, उसका एक रेडियस दिया हुआ है R1 is equals to 10 centimeter, दूसरा रेडियस दिया हुआ है R2 is equals to 15 centimeter. Its focal length is 12 centimeter. इसका focal length दिया हुआ है 12 centimeter. What is the refractive index? Refractive index क्या हो जाएगा? कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे? देखो तो R1 है, R2 है, F है, और यहाँ पे म्यू का फॉर्मूला मांगा है, म्यू का वैल्यू मांगा है. Which formula we are going to use? R1, R2, F and म्यू. याद करो, याद करो, याद करो. इन्हीं चारों को यूज करके एक फॉर्मूला होगा. यहाँ पे हमने यूज किया है ना. हाँ, lens maker formula. So therefore use this formula. 1 by f, that will be equals to mu 2 1 minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. बस ध्यान देना है कि किसको पॉजिटिव लेना है, किसको नेगेटिव लेना है. In this case you see this 10 centimeter will be positive. क्यों? क्योंकि ये R1 जो है ऐसे करके डबल कन्वेक्स लेंस है ना, सो R1 इसका इस साइड में रहेगा, सेंटर इस साइड में रहेगा, सो R1 will be positive, R2 will be negative. So 1 by 10 minus 1 by 15 करना है इसको. Use it. So here you see 1 by f, that is 1 by 12 centimeter, that is equals to mu 2 divided by 1, क्योंकि ये एयर है, minus 1 into 1 by 10 centimeter minus 1 by minus 15 centimeter. Can you all calculate the value of mu 2? Calculate करके वैल्यू का बताओ. So 1.5. 1.5 आ रहा है. ओके, Yes. 1.5. चलो तीसरा वाला सॉल्व करते हैं. What is its focal length in water? Okay, वाटर में इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? वाटर में अगर इसका फोकल लेंथ निकालेंगे देन इट विल बी 1 by f, that will be equals to mu 2. mu 2 वाटर का म्यू का वैल्यू कितना है? 4/3. नो वेट, इसका mu 2 का वैल्यू है 1.5. 1.5 मतलब 3/2 डिवाइडेड बाय mu 1. mu 1 क्या हो जाएगा? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, that will be 4/3 minus 1. बस यहाँ पे जो mu 1 है, mu 1 की जगह में तुम्हें 1.33 पुट करना है. 4/3 into 1 by 10 minus 1 by minus 15. चलो कैलकुलेट करके बताओ कि कितना हो जाएगा f का वैल्यू. देखो this one will be getting it to be 1 by f. इसका फिर से रेसिप्रोकल, you need to find it out. So this will be equals to 9 by 8 minus 1 into 1 by 10 plus 1 by 15. 48 आ रहा है. So this will be equals to 1 by 8 into इसका वैल्यू कितना होगा? 1 by 10 plus 1 by 15. दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30. This one will be 3 plus this one will be 2. So इन दोनों को काट दो 5.
5 6 ja, so this will be equals to 1 by 48. 1 by f is equals to 1 by 48, so f will be equals to 48 centimeter, right? Next. Okay, next. एक लेंस दिया हुआ है, उसका पावर आ रहा है, पावर इज इक्वल टू -20 डायोप्टर। किस टाइप का लेंस है और इसका फोकल लेंथ कितना है, निकाल के बताओ। What kind of lens is this one and what will be its focal length? So focal length 0.05 meter. 0.05 meter. Okay. किस टाइप लेंस है ये? Concave. Yes, it will be concave lens because here you see power is given to be negative, so that is implied then ये concave lens है। और इसका focal length कितना हो जाएगा? f is equals to 1 by p put कर लो। 1 by p means 1 by 20, so that will be equals to 0.05 मीटर। उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। हो गया? Okay. So this is about if one lens is kept. What if multiple lenses are kept? तो फिर क्या हो जाएगा? So यहाँ पे देखो, हाँ। So the focal length minus क्यों नहीं लगेगा? हाँ, माइनस भी लगा सकते हैं। जब हम साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे, मैं उसका मैग्नीट्यूड को बता रहा हूँ। It will be a concave lens of focal length 5 centimeter. But whenever we are going to use the कोई भी फॉर्मूला में, suppose we are going to use the formula 1 by v minus 1 by u is equals to 1 by f. इस केस में हमें साइन कन्वेंशन अप्लाई करना होगा। अभी जब मैंने तुम्हें फोकल लेंथ बताया, उसका मैग्नीट्यूड को बस बताया, उसका साइन को नहीं बताया। Did you get me? Yes sir. ठीक। So basically -5 is also acceptable, but मैंने जब बताया था तब मैंने मैग्नीट्यूड को बताया था। ठीक। Okay, next, what if multiple lenses are kept in contact? So यहाँ पे पहला चीज, write it down, एक स्टार मार्क देके लिख लो। If multiple lenses are kept in contact, let us consider here is one lens. ये एक लेंस है, इसके साथ ही साथ में एक दूसरा लेंस को कांटेक्ट में रख ले, दूसरा लेंस, साथ ही साथ में एक तीसरा लेंस को भी कांटेक्ट में रख लेता हूँ, तीसरा लेंस। मान लो कि पहला लेंस का मैग्निफिकेशन है m1, दूसरे लेंस का मैग्निफिकेशन है m2, and the third lens has the magnification m3. So that means what we can understand it at here is that अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रखता हूँ, पहला लेंस से क्रॉस होने के बाद उसका इमेज जो हो जाएगा, इट विल बी m1 टाइम्स द ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली इमेज इज इक्वल टू, पहला लेंस से जब ये क्रॉस करेगा, पहला लेंस के बाद जो इमेज होगा, दैट विल बी m1 टाइम्स द ऑब्जेक्ट। सो दैट मींस ऑब्जेक्ट साइज इनटू m1। जब वो दूसरा लेंस को क्रॉस करेगा, फिर वो फिर से m2 टाइम्स बन जाएगा। m1 के पास बाद जितना था उसका फिर से m2 टाइम्स। फिर जब वो तीसरा लेंस को जब वो क्रॉस करेगा, then again it will be into m3 times. So what does that means? The new image will be object into m1 into m2 into m3. क्योंकि एक लेंस को क्रॉस करने के बाद, पहला लेंस को क्रॉस करने के बाद उसका मैग्निफिकेशन m1 टाइम्स हो जाएगा, दूसरे लेंस को क्रॉस करने के बाद उसका मैग्निफिकेशन
m2 टाइम्स, तीसरे लेंस को क्रॉस करने के बाद m3 टाइम्स। सो डेफिनेटली तीनों को अगर रख देंगे, पहला के बाद m1 टाइम हो जाएगा, दूसरे के बाद m1 का फिर से m2 टाइम्स हो जाएगा, तीसरी बार फिर से m1 m2 फिर से m3 टाइम्स हो जाएगा। सो देयरफॉर व्हाट वी आर गेटिंग, टोटल मैग्निफिकेशन इज m1 into m2 into m3। सो देयरफॉर पहला पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन कर लो, टोटल मैग्निफिकेशन m is equals to m1 into m2 into m3। और भी कुछ अगर लेंसेज रहता तो फिर क्या हो जाता है, into m4 into m5, all those things could have been there, right? Secondly, let us consider the first one has the power p1, the second one has the power p2, the third one has the power p3, मान लो इसी तरह का है। So that means if one ray is coming, the first one will converge by an angle alpha 1, कुछ एक एंगल थीटा 1 से ये कन्वर्ज कर देगा, फिर से दूसरा वाला फिर से थीटा 2 एंगल से कन्वर्ज करेगा, फिर से तीसरा वाला क्या होगा, थीटा 3 एंगल पे ये कन्वर्ज कर देगा। सो दैट मींस इफ ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज कमिंग, पहले फॉर द फर्स्ट लेंस इट इज गेटिंग कन्वर्ज बाय एन एंगल ऑफ थीटा 1, दूसरे लेंस से जब जाएंगे तब वो थीटा 2 एंगल से कन्वर्ज हो जाएंगे, तीसरे लेंस से जब वो जाएंगे वो थीटा 3 एंगल से कन्वर्ज हो जाएंगे। सो व्हाट इज द टोटल एंगल ऑफ कन्वर्जेंस, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? या फिर इसको और थोड़ा इलैबोरेट कर लूं, और थोड़ा इलैबोरेशन चाहिए? यस और नो? नो आंसर? आई होप इट इज क्लियर देन। अच्छा चलो मैं एक थोड़ा सा और इलैबोरेट कर देता हूँ। मान लो यहाँ पे मैंने एक लेंस को रखा, एक लेंस को रखने से मान लो हियर आई एम सप्लाइंग ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, सो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी कन्वर्ज्ड, ऐसे करके थोड़ा सा हल्का सा कन्वर्ज होंगे। लेट अस कंसीडर दिस वाज द, so it is getting converged by an angle of theta 1। let us consider after that I am keeping another lens, यहाँ पे मैं एक दूसरा लेंस को रख देता हूँ। so that is imply then these rays again they are getting converged by certain angle, कितना एंगल से ये कन्वर्ज हो गए, थीटा 2 एंगल से कन्वर्ज हो गए। सो टोटल कितना एंगल कन्वर्ज हुआ, इनिशियली इट वाज थीटा 1, देन अगेन इट इज थीटा 2। सो टोटल एंगल ऑफ कन्वर्जेंस फर्स्ट थीटा 1 देन थीटा 2, टोटल इज थीटा 1 प्लस थीटा 2। So total angle of convergence is theta 1 plus theta 2. So similarly power is also getting added up. इसका प्रूफ तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इसका प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, but for the timing understand that power is getting added up. So therefore total power P equivalent, this will be equals to P1 plus P2 plus P3, right? P equivalent is equals to P1 plus P2 plus P3. Now we know that 1 by P equivalent is equals to 1 by F, P is equals to 1 by F, so P1 will be equals to 1 by F1, P2 will be equals to 1 by F2, P3 will be equals to 1 by F3. So this will give you the 1 by F equivalent, और यहीं से तुम्हें इक्विवेलेंट फोकल लेंथ मिलेगा, तीनों का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना हो जाएगा। सो दिस गिव्स यू द थर्ड वन, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, equivalent focal length, right? And this one is the total कह सकते हो, या फिर इसको equivalent भी बता सकते हो, equivalent power, that is also acceptable. Is it clear? But is it guaranteed that whenever 2 or 3 lenses are there, they will be in contact always? नहीं, जरूरी नहीं है, तो कांटेक्ट से बिछड़ भी सकते हैं, देयर कुड हैव बीन सम डिस्टेंस। सो नेक्स्ट एक और स्टार मार्क देके लिख लो, इफ 2 lenses are kept at a small distance apart
एक दूसरे से एक छोटा सा डिस्टेंस में है. Let us consider here is one lens and let us consider here is another lens. Let us consider its power, its focal length is f1 and hence power is p1. Its focal length is f2 and hence power is p2. And let us consider the distance between them is d. So then what will be the power? What will be the equivalent power? So that is then equivalent power. Then equivalent power P equivalent, that will be equals to P1 plus P2 minus D times P1 P2. अगर ये डिस्टेंस अगर जीरो हो गया, देखो हमारा पुराना वाला फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं, ये डिस्टेंस अगर जीरो हो गया, द थर्ड टर्म विल वैनिश टू जीरो एंड हेंस वी आर गेटिंग P equivalent is equals to P1 plus P2. And hence what will be the equivalent focal length? 1 by F equivalent. This will be equals to 1 by F1 plus 1 by F2 minus D divided by F1 F2. So these are the two formulas if two lenses are kept at certain distance from each other, separated by a certain distance from each other. बस इतना ही है तुम्हारे पावर के रिलेटेड में. अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. पहले थ्योरी को देख लो. इज इट क्लियर बाय एवरीवन ऑफ यू? क्या ये सब चीजें क्लियर हैं? देन विल स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस. यस, ओके चलो. पहला क्वेश्चन, किस टाइप का लेंस लो? कॉन्केव, कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स. चलो कॉन्वेक्स लेंस एक तो ले लिया. दूसरा लेंस कैसा वाला लो? चलो दूसरा वाला भी मैं कॉन्वेक्स लेंस ले लिया. चलो एक फोकल लेंथ बताओ. एक let us say this focal length is 30 centimeter and this focal length is f2 is equals to 60 centimeter. Can you all calculate first power of the first lens, second power of the first lens and second lens, second one the equivalent power, and third one the equivalent focal length. इन सबको कैलकुलेट करके बताओ. Power of the first lens P1, power of the second lens P2 and equivalent power of the whole setup. पूरा का पूरा लेंस का equivalent power कितना हो जाएगा? So P1 equal to 1 by 30 centimeter. 1 by 30 सेंटीमीटर. अच्छा, पावर कब से सेंटीमीटर में आने लगा? Doctor. कितना रहे by 30 डायोप्टर. ओके. yes, sir. So then 1 by 60 diopter. 1 by 60 डायोप्टर. बहुत बढ़िया Then- मिस्टेक है. बहुत बढ़िया मिस्टेक है अपूर्वा. Can someone else tell me? So 100 by 30. Exactly, 100 by 30. Very good. So therefore P1 will be equals to 100 divided by 30 diopter. And similarly P2 will also be equals to 100 divided by 30 diopter. क्या 100 by 30 क्यों होगा? कोई और मुझे बता सकते हो? Why not 1 by 30? 100 by 30 क्यों होगा? No one else. No one else is there? Yes. बाकी सब लोग तो है. 100 by 30 क्यों लिख रहे हैं हम? 1 by 30 क्यों नहीं? Because the focus. क्यों अपूर्वा?
सर क्योंकि पावर मीटर में निकालते हैं अडेप्टर का जो वैल्यू रहता है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे ना, so therefore we'll be getting the answer to be 100 divided by the focal length. Here you see the focal length is given as centimeter in centimeter. So because it is given in centimeter, we'll be getting the formula to be 100 divided by 30, 100 divided by L. So this will also be 100 divided by this one. Can you all calculate the equivalent power and equivalent focal length? So equivalent power 5 diopter. Equivalent power 5 diopter. Okay, 5 diopter आ रहा है, ऐड कर देने से 30. And F equivalent is equal to 20 centimeter. This is equal to 20 centimeter. How many of you are getting this answer? Just raise your hand. Okay, only Apurva. Sanjana, Supriya. सर P equivalent 4.9 आ रहा है। 4.9 आ रहा है। अच्छा, P1 P2 सही आया? 100 by 30 and 100 by 60. Yes sir. Okay, Shikta, Suchismita, Dars. No one else is there? Darsh. No. देखो यहाँ पे P1 P2 100 by 30 and 100 by 60 आ रहा है. So therefore P equivalent is equal to, we know that this will be equal to P1 plus P2. P1 का वैल्यू पुट कर लो 100 divided by 30. P2 का वैल्यू पुट कर लो 100 divided by 60 डायोमीटर. So दोनों का LCM हो जाएगा 60. This one will be 200 plus this one will be 100. So total is coming to be 300 divided by 60. 300 divided by 60 will be equal to 5 diopter. And if this one is 5 diopter, that is implied then focal length. या फिर directly 1 by f1 plus 1 by f2. 1 by f is equal to उसी फॉर्मूला को पुट करके देख सकते हो. So we can calculate it to be F equivalent is equal to 1 by P equivalent. 1 by 5 meter. That will be equal to 20 centimeter. This will be the answer. Right? Next question. Oh no. एक छोटा सा ये है. मैंने P1 P2 दे दिया, लेकिन दोनों के बीच में डिस्टेंस नहीं दिया. हमने सब कुछ कैलकुलेट कैसे किया? राइट? डिस्टेंस एक बताओ. अगर ये कनेक्शन में if both of them are in contact, then all these things will be getting. If they are not in contact, then ये चीजें हमारा फॉर्मूला में नहीं आएगा. So that is implied then if let us consider the distance between them is 10 centimeter. अभी distance between them 10 centimeter. ऐसा assume करके चलो अभी. Now calculate what will be P equivalent and what will be F equivalent. अभी P equivalent कितना होगा और F equivalent कितना होगा? So 40 by 9 diopter आ रहा है. 40 by 9 आ रहा है. Okay. So So here 4.4. 4. 40 by 9 4.4. अच्छा, ये पहला वाला 5 डायोप्टर आ गया ना? When both of them are in contact, when both of them are in sets, when both of them are separated, both of them are separated,
We can write it down that P equivalent, this will be equals to P1 plus P2 minus D P1 P2. So here you can write down P1 का वैल्यू है 100 divided by 30 प्लस P2 का वैल्यू है 100 divided by 60 माइनस डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ ना, उसको हम एसआई में कन्वर्ट करना होगा। एसआई में 10 सेंटीमीटर कितना होगा 0.1, दैट विल बी इक्वल टू 1/10 1/10 into 100 divided by 30 into 100 divided by 60। So therefore let's cancel them। देखो इसका तो वैल्यू हमारा 5 ही आ रहा था डायरेक्टली, हम लिख सकते हैं इसमें 0 0 0 0 और ये एक 0 0 को मैंने काट दिया। सो बचा हमारा क्या, इट इज कमिंग टू बी 5 minus 10 divided by 6 या 18। सो इट इज कमिंग टू बी 80 divided by 18। चेक कर 18 5 जा is 90 90 minus 10 is 80 80 divided by 18 that will be equals to 40 divided by 9। हाँ अपूर्वा 4.4 हुआ 4.4 के करीब हुआ। करेक्ट। एंड व्हाट विल बी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, so it will be coming as this much of diopter and equivalent focal length will be its inverse 9 divided by 40 मीटर। इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 900 डिवाइडेड बाय 40 90/4 उतना आ जाएगा। यस और नो? तो चलो वहां का क्वेश्चंस को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो दिया हुआ है टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड -5 सेंटीमीटर आर kept in contact। -5 सेंटीमीटर का क्या मतलब हुआ, इट इज ए concave lens। वेरी गुड। सो चलो इसको सॉल्व करके दिखाओ क्या आएगा। दे आर kept in contact, माइंड इट, डी का वैल्यू 0 है। सो दिस इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। अगर लेंसेज को अगर कंबाइन किया गया तो फिर क्या होगा, so -10 सेंटीमीटर आ रहा है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर। ओके यस संजना, यस उतना आ रहा है। ठीक है नेक्स्ट एनीवन एल्स, शिक्ता, सुचिस्मिता, दर्श? सर मेरा भी उतना आ रहा है। उतना आ रहा है, ठीक है चलो इक्विवेलेंट पावर निकालो। सर -10 डायोप्टर। -10 डायोप्टर, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इसको चलो सॉल्व करो तो। अच्छा कन्वर्जिंग लेंस मतलब कौन सा लेंस रहता है, कन्वेक्स लेंस। वेरी गुड, चलो सॉल्व करना स्टार्ट करो। एक कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, उसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर और दूसरे एक लेंस के साथ उसको रख दिया गया और दोनों लेंस बिहेव कैसे करते हैं, एक सिंगल डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर जैसे बिहेव करते हैं। दूसरे वाले का पावर और नेचर निकालो।
So P2 equals to -4 diopter or concave lens. अच्छा, P2 इज इक्वल टू -4 डायोप्टर, माइनस मतलब कंकेव लेंस। क्या यही आ रहा है शिक्ता, संजना एंड दर्श एंड सुचिस्मिता? Yes sir, आ रहा है। ग्रेट, वेरी गुड। सो इट विल आल्सो बी कंकेव लेंस। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन को सर चलो सॉल्व करो। So इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। ओके, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। हाँ सर। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट अदर्स? देखो आ रहा है सर। सेम आ रहा है 10 सेंटीमीटर, वेरी गुड। सो हियर यू सी इसका पावर दिया हुआ है P1 दिया हुआ है एंड दिस वन इज गिवन एज P2। बस इक्विवेलेंट निकाल लेना, P इक्विवेलेंट निकाल के उसका इनवर्स कर लो, F इक्विवेलेंट आ जाएगा। ओ, ये वाला क्वेश्चन एक अच्छा दिया। An object of size 3 cm is placed at a 30 cm from this combination of lens. Calculate the position size of the image formed. Very good. So here you see the F equivalent is equal to 10 cm हमारा आ गया, right? अभी देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे दे दिया है 3 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है। सो यू विल बी इक्वल टू -3 सेंटीमीटर। ये हमने लास्ट क्लास में देख लिए हैं। सर ये -30 सेंटीमीटर होगा ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज 3 सेंटीमीटर है। Okay, sorry, the size, the object distance is this one, so -30 centimeter this one will be, and object size को हम किससे डिनोट करते हैं? HI, object size, sorry, HO, object size HO is equals to 3 centimeter। ये दो चीजें दिया हुआ है। Now secondly, we know that the focal length F is equals to 10 centimeter। F is equals to 10 centimeter. So use the formula 1 by V, that is the lens formula, 1 by V minus 1 by U is equals to 1 by F। इसको यूज करके V का वैल्यू निकालो तो सर V प्लस 15 सेंटीमीटर। प्लस 15 सेंटीमीटर, ओके। प्लस 15 सेंटीमीटर। सेकेंडली, कैन यू ऑल कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन वैल्यू? लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? V by U। V by U, use the formula। So -1 by 2। -1 by 2। So magnification by definition, what is magnification? It is equals to height of the image divided by height of the object। So that is implied then height of the image क्या हो जाएगा? Height of the image that will be equals to -1 by 2 into height of the object। So that will be equals to -1 by 2 into 3। So that will be equals to -1.5 सेंटीमीटर। ये -1.5 सेंटीमीटर का माइनस का मतलब क्या हो गया? माइनस का मतलब सिंपल है that the object is inverted। This shows that the object is inverted। And secondly, in case of lens, the object distance is positive। This shows that the object is real object। क्यों real object in case of lens? Lens के केस में अगर इमेज अगर राइट हैंड साइड में बन रहा है, that means
द रिफ्रैक्टेड रेज दे आर मीटिंग आफ्टर द रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद जाके डायरेक्टली मिल रहे हैं, एंड इफ दे आर डायरेक्टली मीटिंग दैट इज इम्प्लाई देन द इमेज विल बी रियल इमेज। सो ये रियल इमेज बन जाएगा। रियल इमेज मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1/2, लेस देन 1, इसका मैग्नीट्यूड जो है 1/2 है, सो दैट इज इम्प्लाई देन पहला चीज ये रियल है, दूसरा चीज ये इन्वर्टेड है because magnification is negative, thirdly the magnitude of magnification is 1/2, so that is implied and it is diminished, छोटा साइज का इमेज बनेगा। DIMI NISHED, the image is diminished। तीनों चीजें आ गया, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, तीनों चीजें मैंने बता दिया। नेक्स्ट इसको चलो सॉल्व करो तो, इसके बाद और भी है क्या? हाँ एक और क्वेश्चन है इसके बाद। एक ग्लास कॉन्वेक्स लेंस हैज द पावर ऑफ 10 डायोप्टर, एक ग्लास कॉन्वेक्स लेंस है उसका पावर दिया गया है 10 डायोप्टर। इसको जब हमने एक लिक्विड में डाल दिया तभी ये कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करेगा और फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, राइट। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा? तो फिर देखो यहाँ पे पहला चीज, द ग्लास कॉन्वेक्स लेंस has the power of 10 diopter, तो फिर उसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? 1/10, so that is equals to 10 centimeter, 1/10 is equals to 0.1 meter, that is equals to 10 centimeter। ओके, ये आ गया हमारा फोकल लेंथ। इसका अगर फोकल लेंथ आ गया, so that is implied then we can write it down that 1 by focal length 1/10 centimeter, this will be equals to लेंस मेकर फॉर्मूला मैं बेसिकली यूज कर रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर -1 into 1/R1 minus 1/R2, this is the focal length 1/R1 minus 1/R2। सेकेंडली जब मैंने उसको लिक्विड के अंदर डाल दूंगा वो क्या हो जाएगा? 1 divided by its focal length, फोकल लेंथ कितना है? कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब माइनस, सेकेंडली उसका फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, सो -50 सेंटीमीटर। दिस विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू द मीडियम, GM लिख दिया, -1 into 1/R1 minus 1/R2। अभी दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, 1/R1 minus 1/2, 1/R1 minus 1/R2 are getting cancelled, yes or no? And what we are getting? We are getting that -50 divided by 10, this will be equals to mu g, ये क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, इट इज 3/2 minus 1 divided by mu gm is equals to mu g divided by mu m। म्यू जी का वैल्यू कितना हो जाएगा? म्यू जी का वैल्यू है 3/2 डिवाइडेड बाय म्यू एम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम म्यू एम -1। इसको चलो सॉल्व करो और बताओ कि म्यू एम का वैल्यू कितना आएगा। इस पूरा का पूरा इक्वेशन को सॉल्व करो और बताओ कि म्यू एम का वैल्यू कितना आ जाएगा। दैट इज इम्प्लाइड देन यहाँ पे 0 0 कैंसिल कर दो, you'll be getting it to be minus of 3/2 mu m minus 1, this will be equals to 3/2 minus 1, that will be equals to 1/2, that is implied then minus of 3/2 mu m plus 1, this is equals to 1/2। so यहाँ पे आ जाएगा, इसको मैं ऊपर में लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, 3/2 times mu m, this will be equals to 1 minus 1/2 will be 1/2, 2 are getting cancelled, mu m is equals to coming to be 3, refractive index of that medium is coming to be 3। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आई डोंट थिंक ये आएगा, मैंने तुम्हारा ऐसा बुक से डायरेक्टली क्वेश्चन को ले लिया था, लेकिन इतना डिफिकल्ट वाला नहीं आएगा। इसको चलो सॉल्व करके दिखाओ।
Find the position of the image formed by the lens combination as shown in the figure. लेंस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पहले निकाल लो। ये सारा का सारा कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लो एंड देन यू कैन कैलकुलेट देम। हाउ टू कैलकुलेट इट? पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लो, फिर इन दोनों का निकाल लेना। हो गया डन। सो चलो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। इन दोनों का फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? पहला दोनों का फोकल लेंथ हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1। 1/f1, f1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सो 100 डिवाइडेड बाय 10। दूसरा वाला -10 है, प्लस 100 डिवाइडेड बाय -10। ओ, इन दोनों का 0 हो जाएगा। ओके, नहीं, दोनों के बीच में डिस्टेंस भी तो है ना। दोनों के बीच में डिस्टेंस है -5 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 डिवाइडेड बाय -10। So these two terms are getting cancelled. ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे and thereafter we'll be getting it to be 0 0 2 तो 0 को काट दो। 500 1/f is equals to 500 diopter. So that is implied then f is equals to 1 divided by 500. This will be in meter, right? सेंटीमीटर में इंटू 100 कर देंगे। सो सेंटीमीटर में इंटू 100 कर देने से 1/5 सेंटीमीटर। 1/5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.2 मीटर। ये आ गया इसका, इन दोनों का फोकल लेंथ। इन दोनों का फोकल लेंथ पता चल गया। अभी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस पता है तुम लोगों को। यूज द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर अगेन। एक बार फोकल लेंथ आ गया, देन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलरेडी गिवन 30 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द इमेज डिस्टेंस। उसी तरह से निकाल सकते हो। उसके बाद बाकी सब कुछ हम प्रिज्म पढ़ेंगे तभी जाके सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। यस, एम आई कनेक्टेड टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके, सो आज का क्लास को हम यहीं पे खत्म कर लेंगे। अगला क्लास को नेक्स्ट टाइम हम कंटिन्यू करेंगे। अगला क्लास मिस मत करना। प्रिज्म का मैं इमीडिएटली खत्म करके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में मूव करना स्टार्ट कर दूंगा। क्या कल हम एक एक्स्ट्रा क्लास कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल?